بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معزز سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جن چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں، مال سے، دولت سے، گاڑیوں سے، یہ محبت میں نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، یہ محبت میں نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، لیکن اس کو میں نے ڈالا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو آزماؤں۔ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے محبت جو آپ کی ہے میری طرف سے ہے، لیکن یہ آزمائش کے لیے، اس کے چکر میں پھنسنا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شہوت سے محبت کرنا، اس کو خوبصورت بنایا گیا، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ شہوات سے محبت کریں۔ شہوات سے محبت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے طرف نفس ان کو بلاتا ہے، شہوات یعنی جس کا طرف دل چاہتا ہے، جس کو کرنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، یہ اس کا یہاں پر شہوات کا معنی ہوگا۔ اور پھر اس کی مثال اللہ نے دی کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر شہوتیں رکھی گئی ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس میں پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کیا من النساء، خواتین، عورتیں ہیں، والبنین، اور اس کے بعد بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور پھر جو ہے پراپرٹی ہے، پراپرٹی سے محبت کرنا، بہت زیادہ مال جمع کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ والخیل والمسومۃ والانعام والحرث، کھیتی باڑی اور بہترین سواری۔ اور یہی چیزیں ہیں آج دنیا میں جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، خواتین کے چکر میں، یا بیٹوں سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پراپرٹی جمع کرے، پراپرٹی بناتے رہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ میں نے آپ لوگوں کے دل میں بات ڈالی ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لیکن پھر اللہ نے آگے بتایا کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا، یہ دنیاوی ساد و سامان ہے، یہاں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں یہ، لیکن آپ اس سے یہاں فائدہ اٹھائیں، اور یہ کچھ دن کے لیے ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں دنیاوی چیزیں کچھ دن کے لیے ہیں، اس کے بعد یہ زائل ہو جائے گا، اس لیے اس کے چکر میں پوری طریقے سے پھنسنا نہیں۔ یہ چیزیں ہیں آپ کو بہکائیں گی، پھسلائیں گی، پوری طریقے سے پھنسنا نہیں، اس کی محبت کو دل میں بیٹھانا نہیں۔ جسم کو فائدہ اٹھانے، جسم کے لیے ہے یہ چیزیں، آپ اس سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہنا، لذتیں لیتے رہنا، لیکن جو حد ہے شریعت کی اس حد میں رہ کے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے شہوتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ خواتین سے اگر آپ شہوت ہے تو شرعی حساب سے آپ کریں، زیادہ شہوت ہے تو اور جو ہو سکتا ہے آپ سے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو شرعی حدود میں رہ کے کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں آ کے میری اطاعت میں کمی کر جانا اور جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسی چیز کو بھول جانا۔ اصل میں نے تمہیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور پھر بار بار قرآن میں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی دنیا اصل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بار بار قرآن میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ روزانہ ہم جمعہ کے نماز میں اس آیت کو سنتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی بھی رہنے والی۔ یہاں دنیاوی زندگی نہ تو زیادہ بہتر ہے اور نہ باقی رہنے والی ہے، تو اس کے چکر میں پھنسنا نہیں، اور
جو शरीयत ने जितनी इजाज़त दी है आपका इसका ख्याल किया गया है, तो जितनी इजाज़त दी गई है उस हिसाब से जो है आप इससे फ़ायदा उठाते रहना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हम देखें तो ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें और वाज़ेह तौर पर इसकी तफसीलात मिलती हैं, इसकी तफसीरात मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर होते थे हमारे साथ, तो जिस तरीके से मियाँ बीवी वाइफ और फैमिली साथ में रहते थे उस तरीके से बातें होती थी, हंसी मजाक होते थे, बातचीत होते रहती थी। लेकिन वो कहती हैं कि जैसे ही अजान होती थी, अजान की आवाज़ आती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस तरीके से बेरगबती और आप अपना रुख इस तरीके से मोड़ लेते थे, ऐसा लगता था कि आप हमें जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे। ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जहाँ हक आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ बुला लिया कि यहाँ इताअत करना है और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आर्डर है, तो फिर अब ये जो दुनियावी चीज़ें हैं जो तबीई तौर पे जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को छोड़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आना, उस मोहब्बत को छोड़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से भूल जाते थे, ऐसा लगता था गोया कि हमें पहचानते ही नहीं। अजान हुई तो अब हमारे पास ये है, अजान हुई हम इन चीज़ों में मशगूल है, बच्चे हैं, बीवियां मशगूल हैं, लेकिन अजान हो गई तो खलास सारे लोगों को भूल जाना। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ ना, बच्चे हैं, अगर बच्चे की मोहब्बत ऐसी हो जा रही है आपसे कि उसके चक्कर में आप ना हलाल को देख रहे हैं ना हराम देख रहे हैं, दूसरों का माल जो हड़प रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, और उसकी वजह से आपकी नमाज जारी है, आप ना तिलावत कर पा रहे हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पा रहे हैं, तो फिर ये जो है आप जो है मकसद को समझ नहीं पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ के इसके लिए बनाया है कि आप थोड़ा सा फ़ायदा उठाना, दुनियावी ज़िंदगी में जो फ़ायदा उठाने की चीज़ है वो मकसद आप जान नहीं पाए और उसमें जाकर फंस गए। और अगर कोई ऐसे फंस जाता है जिसकी दुनियावी ज़िंदगी, वो सब कुछ दुनिया ही को समझ लेता है, सो के उठा तो दुनिया के बारे में सोच रहा है, कोई बात कर रहा है किसी मजलिस में तो दुनिया के बारे में सोच रहा है, जहाँ है वो सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जानवर, इसकी मिसाल अगर उसके किसी इंसान की ज़िंदगी में इबादत नहीं है, सिर्फ यही उसके बारे में बार बार सोचना है, तो उसकी मिसाल ऐसी है जानवरों की जैसे। इसलिए कि जानवर का क्या मसला है, उसका मसला भी यही है कि वो दुनियावी ज़िंदगी से सिर्फ फ़ायदा उठाना उसको। अब वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को पाने के लिए जानवर जो चाहता है कर जाता है, किसी के ऊपर जुल्म कर जाता है, हाँ, जिसको कमज़ोर समझता है उसको 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 सताता है। तो अगर हम दुनियावी ज़िंदगी में फंस जाएं तो हमारी मिसालें ऐसी हो जाएंगी जैसे जानवर, जिसका काम सिर्फ दुनिया ही से फ़ायदा उठाना है, आखिरत के बारे में उसे कुछ नहीं सोचना है। और इसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयतों के अंदर इशारा भी किया है कि उलाइका हुम कल अनामी बल हुम अज़ल, कि अगर ऐसी सिफत हो जाए इंसानों की कि सिर्फ ये इसी में मस्त हो जाए तो ये जानवरों की जैसे, बल्कि जानवरों से भी ज़्यादा गुमराह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे फितरत के अंदर ये चीज़ें डाली हैं, लेकिन आजमाइश के लिए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतों में बयान भी किया कि ये चीज़ें मेरी तरफ से हैं और मताउल हयाती दुनिया, ये दुनियावी साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अच्छा ठिकाना तो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास है। ये ज़िंदगी जो है ज़्यादा बेहतर नहीं है दुनियावी ज़िंदगी, लेकिन ज़्यादा अच्छा बेहतर ठिकाना जो है दारुल करार, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो उसके बारे में फिक्रमंद रहना, उसके बारे में सोचना। और आप थोड़ा सा यहाँ पे रुक के अंदाज़ा लगाएं अपनी ज़िंदगी का, दुनियावी ज़िंदगी कितनी रहेगी किसी इंसान की, कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस माहौल में जिसमें हम जी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल, ठीक है 60 साल 70 साल में आप अपने शुरू की ज़िंदगी देख लें, बचपन वाली 1 से लेकर 20 तक तो ऐसे ही चले गया, समझने में, खेलने कूदने में, और फिर 40 के बाद बदन कमज़ोर हो गया, फिर यहाँ परेशानी हो रही है। बीच में हमारे पास ये जो 10-15 साल है, यही पूरी ज़िंदगी, इसी में हम जैसे अपना जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उसको कर लेंगे, उसी पर हमारा बेस है, उसी पे हमें आखिरत में जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो ये कितनी ज़िंदगी बची, 15 साल की ज़िंदगी, 20 साल की ज़िंदगी है ना, और ये इतनी तेज़ी से ख़त्म होगी हवाओं के जैसे कि पता भी नहीं चलेगा। कि ज़िंदगी बहुत हल्की सी है। और आप देख लें हमारी ज़िंदगी जो पीछे की गई है 40 साल की, या जो भी ज़िंदगी गई है पीछे की, देखें कुछ याद नहीं है, कोई चीज़ ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने दुनिया में कोई चीज़ किया है।
ختم हो गई है, ऐसा लगता है हवाओं के जैसे सारे दिन खत्म हो गए। तो दुनियावी जिंदगी जो भी आपको मिलेगी, चले आप मान लेते हैं हम किसी को 60 साल मिल गई, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं है। आप देखें 1400 साल पहले हमारे जो बड़े लोग हैं सल्फ साले हैं, सबका इंतकाल हुए 1400 साल हो चुके, 1400 साल से ज्यादा हो चुके। अभी क़यामत तक पता नहीं कितने दिन और आएंगे, उसके बाद क़यामत के दिन जब उसके बाद दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएगा, फिर कोई मौत नहीं, तो कितना लंबा पीरियड होगा वो। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल आखिरतु खैरुन, आपका बाकी भी रहेगा और बेहतर भी हुई, बेहतर भी हुई, इसलिए कि आपको वहाँ ज्यादा रहना है, यहाँ कम रहना है। तो उसके हिसाब से सोचना, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये बात बता रहा है कि उसके हिसाब से सोचना है। आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यहाँ की ये चीजें हैं, मोहब्बत आपकी इसकी रहेगी, तभी चीजें हैं, नेचर में है आपके, लेकिन आगे बता रहा कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक, आपको ये चीजें पसंद तो आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या मैं वो बात न बता दूं जो इससे ज्यादा कहीं बेहतर है। कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इन चीजों से भी ज्यादा जो बेहतर है उसके बारे में क्या मैं तुम्हें खबर नहीं दे दूं। लिल्लज़ीन तक़ौ, लेकिन ये क्या सबके लिए रहेगी? ये सबके लिए ये चीज नहीं रहेगी, ये चीज सबको नहीं मिलेगी। ये दुनिया वाली जो चीज है वो सबको मिलेगी, सबके सारे इंसानों के साथ है, इसमें काफिर भी है, मुशरिक भी है, ईसाई भी है, नसरानी भी है, ये मैंने सबको दिया हुआ है, ये मैंने सबकी फितरत में चीज को डाला है। लेकिन जो इससे बेहतर चीज है वो सबको नहीं मिलेगी। वो किसको मिलेगी? लिल्लज़ीन तक़ौ, जो लोग इसको असल मकसद नहीं बनाए होंगे, इन लोगों ने इसको अपने दिल में इसकी मोहब्बत नहीं डाली होगी, इन लोगों ने फायदा उठाया होगा, लेकिन इसको वसीला समझा होगा कि हाँ दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए चीजें हैं, हम जो है जितना हो सकेगा सही तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हद मुकर्रर किया उस हिसाब से हम फायदा उठाएंगे, है ना। तो लिल्लज़ीन तक़ौ, जो लोग डरे और इस आजमाइश में कामयाब हो गए, उनके लिए होगा इंद रब्बिहिम जन्नात, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जन्नत है। कैसी जन्नत? बागात होंगे, जन्नत तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार, जिसके नीचे से जो है नहरें बह रहे होंगे। अब आप देखें, हमारे खुद हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी में रहते हैं, हमें ये बात अच्छी लगती है कि हम जो है किसी समुंदर के किनारे जाके बैठे हैं, वहाँ का मंजर हमें पसंद आता है, हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि जो है महीने में साल में एक आध बार जो है ऐसी जगह पे जाके बैठे जिससे दिल हमारा खुश होता है, मन को भाती है चीजें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ इशारा कर रहा है, बल्कि ये चीजें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बनाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बनाई, समुंदर बनाया है, और फिर जो वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और ये चीज हमें पसंद आती है, हमारे दिल को लगती है। तो आप जरा सा इस मंजर को यहाँ पर सोचे, दुनियावी मंजर को, कि जब आप बैठते हैं कहीं समुंदर के किनारे, है ना, आप बैठे हैं, आपके साथ सारे लोग बैठे हैं, वहाँ पर खूबसूरत सा मंजर है, और उसके बाद वहाँ पर कोई आपकी खिदमत भी कर रहा हो, खास करके अगर कोई प्रोग्राम हो, वेटर हो, वहाँ पर सब अच्छे से पहन के लिबास, वो लोग आपको खिदमत कर रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता है? नफ्स को मजा आता है कि नहीं? एंजॉय होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जन्नत में इससे कहीं बेहतर तरीके से हो, और कुरान में आप पढ़ेंगे तो बार बार जन्नतों के बारे में इस तरीके से मौजूद, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दिया है वहाँ पर कि जन्नतें होंगी, नीचे से नहरें बह रही होंगी, छोटे छोटे बच्चे आपकी खिदमत कर रहे हैं, यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, सूरह दहर अगर आप पढ़ेंगे उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि जो वेटर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके पास घूम घूम के आके जो है आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आपको शराब ऐसे मशरूबात पिलाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो पाक होगा। और फिर अल्लाह ने कहा कान लकुम जज़ाउ व कान सअयुकुम मशकूरा, ये बदला होगा जो तुमने किया होगा, और तुम्हारे जो है काम को सराहा जाएगा और उसका बदला तुम्हें जरूर दिया जाएगा। जन्नतों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र किया है, जब आप उस पर ठहरेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा जानेंगे, तब जो है आपके अंदर जन्नत में जाने का शौक पैदा होगा, जन्नत में जाने का शौक पैदा होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से हमारे लिए इस जन्नत को सजाया है, हमारे लिए बनाया है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजाना जन्नत को सजाते रहता है, बनाते रहता है। जब आप उस मंजर को पढ़ेंगे, उसका तस्वुर करेंगे, और इस यानी दुनियावी तस्वुर जो तो हल्का सा है, उसके तो मिसाल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन जब इसमें हमको मजा आता है तो सोचें वहां पर किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए तैयार करके रखा होगा, उसमें हमें कितना इंटरेस्ट आएगा और कितना मजा आएगा। तो हमारी सोच उसके लिए होना चाहिए,
उस जन्नत के लिए होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरा, और वहाँ पे पाक बीवियाँ होंगी, कोई गंदगी नहीं होगी। ख़वातीन का भी मसला है, औरतों का मसला है, जन्नत में वहाँ भी मिलेंगी, आप दुनिया में मिलेंगी, लेकिन जो हद है उस हद से तजावुज़ नहीं करना, उनसे फ़ायदा उठाना, और बाकी चीज़ें रहेंगी तो उस पर सब्र करना। अगर आपको चाहिए कि आप जन्नत में भी आपके पास नेक बीवियाँ, अच्छी बीवियाँ हैं, तो यहाँ जो शरीयत ने इजाज़त दी है उसके साथ अच्छे से रहना, बाकी चीज़ों की तरफ नज़र नहीं दौड़ाना। उनके अगर कोई चीज़ दिख गई, कोई चीज़ हो गया तो सब्र करना। ये सब्र करते हुए कि इंशाअल्लाह इसके बदले में हमें जन्नत में चीज़ें मिलेंगी जो पाक होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाजुम मुतहहरा, सूरह रहमान आप पढ़ेंगे, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, वहाँ जो औरतें होंगी हया होगी, उनका बेशरम नहीं होंगी, नीचे होंगी उनकी निगाह। और ये सबसे अहम खूबसूरती है ख़वातीन के अंदर कि उनके अंदर हया हो, शर्म हो। और वो जो है ख़वातीन के बारे में बताया जन्नत के बारे में कि उनकी निगाहें नीचे होंगी, इधर उधर देखने वाली नहीं होंगी, बाहया होंगी, उनके अंदर जो शर्म उनको छूती भी नहीं होगी। तो ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी, और कोई गंदगी नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई गंदगी उनके अंदर नहीं होगी। वो अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में सबको देगा, लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी नहीं मिलेगी। और रिज़वानुम मिनल्लाह ये कब होगा? जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर चलते हुए अमल करेगा, तो जन्नत में ये चीज़ें मिलेंगी भी, जन्नत भी मिलेगी, और प्लस ये चीज़ मिलेगी व रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी। तो ये उन लोगों की मिलेगी जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेंगे। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और जो भी काम आप कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है। तो हमारी जो कोशिश होना चाहिए वो आखिरत के ताल्लुक से होना चाहिए, जन्नत के ताल्लुक से होना चाहिए, और यहाँ पर फिक्र होना चाहिए जो दुनिया में फिलहाल कि वो रास्ता कौन सा है जो हमें जन्नत तक पहुँचाए। और आज जिस कंडीशन में जहाँ हम जी रहे हैं, फितनों का दौर है, फितनों का दौर आपके लिए और मुसलमानों के लिए ये समझ पाना ही आजकल मुश्किल हो गया है कि वो रास्ता कौन सा है जो जन्नत को ले जाएगा, जन्नत में हमें पहुंचाएगा। लेकिन सच ये है कि एक रास्ता मौजूद है, एक ही रास्ता है, एक ही जमात हक पर है, वही रास्ता जो है जन्नत को ले जाने वाला है, उसकी हमें तलाश करना चाहिए। और वो रास्ता जो है हमारा सलफ का रास्ता है, जिसे हम कहते हैं मनहज सलफ। इस रास्ते पर हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सिर्फ यही रास्ता है जो आज के जो सही इस्लाम है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ खुले और साफ अंदाज में कि आज के इस दौर में जो सही ओरिजिनल पेवर जो इस्लाम है वो मनहज सलफ के रास्ते में अगर हम चलेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ मिलेगी। सिर्फ वही एक है जो हमें जन्नत तक ले जा सकता है। इसलिए हमें तलाश करना है इस रास्ते पे आने की कोशिश करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हमें खात्मा हो तो ईमान पर हो, और हमें जब आखिरत में हमारे लिए जन्नत में दाखिल करे, जहन्नम के आग से बचाए, और हमें इस दुनिया में तौफीक दे कि हम उस काम को कर सके जो हमें जन्नत तक पहुंचा सके, हम सही से दीन को समझ सके, हमें तौफीक दे कि हम अच्छे और बुरी चीज़ में फ़र्क करके उसके जो सही हदफ है उस तक पहुंच सके और बआसानी जन्नत में दाखिल हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।